और बालिका वधू से लेके संकल्प तक, what is the most memorable thing so far? It's a journey of 14 years and 14 years में सिर्फ एक मेमोरी तो नहीं हो सकती. Acting workshop specifically, Yeah. they do help you. Any part of the workshop touches that aspect of your life जो आपको करने की ज़रूरत है. वेब सीरीज शूट होता है, पूरा होता है, उसका रिव्यू आपको तब मिलता है जब ऑडियंस उसको देखती है, फिर आपको देती है. That's how we roll, chasing big dreams. Yeah, we're in control in a swank way. That's how we roll, chasing big way. That's how we roll, chasing big dreams. Yeah, we're in control in a swank way. Hi Roop, welcome to In a Swank Way. Hi, thank you so much for having me here. How are you feeling? I'm feeling calm. Nice. And the way you mentioned when we were chatting, you are from Uttarakhand. तो मुंबई आके और बालिका वधू से लेके संकल्प तक, what is the most memorable thing so far? I think I have made memories throughout my journey, and it would be very difficult to name one memory because it's a journey of 14 years. Wow. And 14 years में सिर्फ एक memory तो नहीं हो सकती. It's like many memories, and I think life is all about dreams and memories. तो एक तो नहीं बोल सकती, बहुत सारी हैं और बहुत अच्छी memories हैं. Okay. And when we talk about dream, तो आपने ऐसा ड्रीम देखा था कि आप कभी एक्टिंग करोगे? Initially not. Initially it was something which was manifested by people around me, and I'm How? so grateful to them. उसके बाद धीरे धीरे it became my dream. So like when we were chatting, I told you that I was someone जिसको पता ही नहीं था कि करना क्या है लाइफ में. जो हो रहा था होते चला जा रहा था. आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स. मोस्ट ऑफ द people in my family are engineers or scientists or doctor. My mother was a PhD doctor. So when you come from this kind of a setup, it's very hard to even imagine of something beyond this. But somehow I couldn't see myself fitting in anywhere. Okay. I had maths and bio both in my 12th. So I was eligible to pursue medicine as well as engineering. And of course, my parents wanted me to pursue civil services after my basic graduation of BTech or MBBS, whatever. Okay. But मुझे नहीं महसूस हो रहा था कि मैं कहीं पर भी fit हो रही हूँ. So as universe wanted me to be here, and my people in my engineering college, everyone around me literally manifested it for me. They supported me, pushed me so much that by the end of third year, it was in my head that I'm You an want to be- actor. Oh. हाँ, ऑलरेडी ये सेट हो चुका था कि मैं हूँ. तो जो देखा इतने सालों तक, जो देखा सबने मेरे साथ मिलके वो ड्रीम देखा, और आई ऑल्सो गेव इट एनर्जी बाय यू नो फीलिंग दैट यही मैं हूँ, बिकॉज मैं और कहीं पे अपने आप को वो फिट महसूस ही नहीं कर पा रही थी. तो फिर वो हो गया. You also believe in lot of energies and spiritual practices, right? हाँ, तो मतलब how it helped you in your career? एक्चुअली आई फील कि ये जो स्पिरिचुअलिटी है ना, ये कोई ऐसे अलग से नहीं होता है कि मैंने ये कुछ कर लिया तो मैं स्पिरिचुअल हो गई. दीज आर वेरी फैंसी थिंग्स जो कि अभी तो काफ़ी प्रिवलेंट हो गया है, एंड एवरीवन wants to say that I'm spiritual because it sounds so fancy. बड़ा According अच्छा to you, लगता what है. is spiritual? सबसे पहले तो ये समझना ही कि we are not like this body, we are a soul, and जो भी हम externally कर रहे हैं वो सिर्फ एक प्रोजेक्शन है, लेकिन जो हम अंदर से हैं, how we are as a person, that is the true essence, that is the truest self. तो वो अंडरस्टैंडिंग के जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो एक पर्पस के लिए कर रहे हैं. एंड डेफिनेटली द लॉ ऑफ कर्मा, कि उसी दायरे में रह के करूँ कोई चीज़ जो कि किसी और को हर्ट ना करे, Okay. एटलीस्ट इंटेंशनली.
तो ये अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग योर सेल्फ, knowing your inner self is actually being spiritual, I think, instead of the trendy kind of things Right. जो बोलने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम spiritual हैं, but do you take care that you intentionally at least do not hurt people? Do you not do any things which will harm someone? And are you aware that this is just your external self? No matter how good you look externally, actual thing is your heart. तो अंदर से अगर दिल साफ नहीं है, हाँ, वो किस कोई मेकअप उसे नहीं कर एक्सटर्नली आप अपने आप को ब्यूटिफाई कर सकते हो विद मेकअप, विद लॉट्स ऑफ थिंग्स, लेकिन दिल को कैसे साफ करोगे? दिल को कैसे सुंदर बनाओगे? मेकअप से, ग्रूमिंग से आप, इट्स ओनली टू एन एक्सटेंट यू कैन अपीयर राइट. presentable. Again, how do you make your heart presentable, make your heart kind? क्योंकि वो जो internal जो है ना, वो reflect होगा ही होगा कभी ना कभी in your behavior, in what you do in life, how you treat people, how you leave people after they have met you. It is a saying ना कि always leave people happier than they were when they met you. यू नेवर नो. हाँ, तो एटलीस्ट अपनी तरफ से तो ये कोशिश होनी चाहिए ना कि कोशिश भी क्या, यही तो सेल्फ है ना, दैट इज बीइंग ह्यूमन. अगर उसको कोशिश करनी पड़े तो स्पिरिचुअलिटी है ही क्या? एग्जैक्टली यू आर राइट. एक्चुअली कोशिश करनी पड़े, आई थिंक कोशिश तब करनी पड़ सकती है जब आपको ये लगे कि इमीडिएट एहसास हो जाता है कई बार, वी आर आफ्टर ऑल ह्यूमन बींग्स एंड मिस्टेक्स करना हमारी बिकॉज वी हैव कम टू लर्न. हम अपने आप में चीज़ें इम्प्रूव करने ही आए हैं. तो गलतियाँ करेंगे, लेकिन वो गलतियाँ करने के बाद अगर हमें इमीडिएटली एहसास हो जाता है और हम करेक्ट करना चाहते हैं खुद को, तो वो कोशिश भी अच्छी है. वो इंटेंशन भी अच्छा. योर इंटेंट इज़ टू बी रियल, वही सब सामने आएगा. इफ़ योर इंटेंट इज़ टू कीप पीस अराउंड, कीप हैप्पीनेस अराउंड, तो आपके एक्शंस वैसे ही होंगे. सो दैट अवेयरनेस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. और ये कैसे आएगा? खुद को जानने से. राइट. कि अनलेस वी सिट विद आवरसेल्व्स अलोन, तो हमें पता ही नहीं है कि हम हैं क्या एक्चुअली. और जब हमें पता ही नहीं है तो फिर दैट इज़ वाई एवरीथिंग इज स्कैटर्ड. हाउ वी बिहेव विद पीपल, हाउ वी मेक अदर्स फील, हाउ वी लीव अ रूम आफ्टर वी हैव लेफ्ट, सो दोज काइंड ऑफ things I think are actual spirituality. इतना उसको बड़ा करने की एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपने 10,000 तरह की चीज़ें करनी है. सिंपलेस्ट लाइफ इज़ इन इट्स सिंप्लिसिटी, आई थिंक. राइट. सो दैट्स व्हाट आई बिलीव इन, एंड इट्स अ जर्नी. योर क्वेश्चन वाज कि ये मुझे काम कैसे आया है ये सब. हाँ, मतलब आपके करियर में उसको हेल्प कैसे हुआ? आई थिंक सिर्फ करियर में नहीं, ओवरऑल, बिकॉज करियर क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. राइट. लाइफ इज दिस बिग, उसमें करियर का भी एक पार्ट है. राइट. फैमिली, एंटरटेनमेंट, टू मेनी थिंग्स टू लाइफ. तो करियर भी उसका एक हिस्सा है. तो अगर कोई चीज़ आप में अंदर से है तो वो आपको ओवरऑल ही हेल्प करेगी. इट्स नॉट समथिंग जो कि आप उसको सोचो कि मुझे यहाँ पे कब क्या करना है. वो आई थिंक ऑटोमेटिकली फ्लो होता है. एंड विद मी इट हैज़ बीन अ जर्नी. व्हेन आई वाज अ स्मॉल किड, आई थिंक आई वाज हाईली स्पिरिचुअल बचपन में. बट ओवर द टाइम, बिकॉज यू गेट इन्वॉल्व इन सो मेनी थिंग्स, पढ़ाई में आप थोड़ा कंपेटिटिव हो जाते हैं एंड ट्राइंग टू फिगर आउट थिंग्स फॉर योर सेल्फ कि क्या करना है मुझे. तो उन सारी चीज़ों में इंसान बहता है, खो जाते हैं, और अपने आप से जो कनेक्शन है इंटरनल सेल्फ से, वो छूटता है. मेरे साथ भी छूटा, एंड फिर कम बैक होता है उस चीज़ का. देयर इज़ होते हैं ना लाइफ में, देयर आर फेजेस व्हेन यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद योर सेल्फ अगेन, व्हेन यू वांट टू सिट विद योर सेल्फ एंड फिगर आउट. व्हाट वाज दैट पॉइंट फॉर यू? Many points. I would not elaborate into all the points, but I think when I lost my mother in 2019,
few months before COVID struck us all. So it was a shocker for me because my mother was like everyone's mother. My mother was also my backbone, and I never used to worry about things. उससे पहले मुझे जो चीज़ें लगती थी, हम छोटी छोटी चीज़ों पे अफेक्ट हो जाते हैं. किसी ने कुछ कह दिया, ये हो गया, वो हो गया, हर चीज़ ऐसे अफेक्ट करती थी. बट व्हेन आई लॉस्ट माई मदर आई फेल्ट लाइक इससे पहले तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी ज़िंदगी में. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आई है, और इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती. जिसको तुम सॉल्व भी नहीं कर सकते. हाँ, बिकॉज दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ विच हैज़ हैपेंड. डेथ इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ, जो कि हम डिनाई करते हैं. नो बडी वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट डेथ. इट्स लाइक अ टैबू काइंड ऑफ अ टॉपिक. बात ही क्यों करनी है, क्यों सोचना है इसके बारे में, विच इज़ राइट. ज़िंदगी जी रहे हैं तो डेथ के बारे में क्यों सोचें. लेकिन ये भी पता है, अंदर ही अंदर होना चाहिए कि वी आर नॉट eternal beings. We are here for a short time and nobody knows their time. So it shook me. It took me easily 1 year to absolutely come out of it. क्योंकि आप process नहीं कर पाते हो immediately. I was flooded with events during that time. Events and lots of work. And तो 6 महीने तक तो I think मैंने process ही ठीक से नहीं किया. And crying and all was happening, but एक्सेप्टेंस. दुख के साथ, yes, acceptance took time. and उस दुख के साथ बैठना, वो बैठने का मेरे पास टाइम ही नहीं था, और शायद मैं देना भी नहीं चाहती थी. भागते हम. हाँ, भागते भी हैं और आपको समझ नहीं आता है. यू आर नॉट सो मेच्योर ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है, इसका इम्पैक्ट क्या है, और इसको मुझे प्रोसेस किस तरह से करना है. अभी भी मैं सीख ही रही हूँ चीज़ों को. सो वो एक पॉइंट था. उसके बाद सितंबर में शी पास्ड अवे, एंड देन आई थिंक 2020 फरवरी और मार्च कोविड का हो गया था स्टार्ट. एंड अगेन फिर आप थोड़ा सा अगेन ड्रिफ्ट होते हैं लाइफ की रियलिटी से कि अब ये कुछ और हो गया ज़िंदगी में, कुछ नया आ गया है. अब ये सब लोग लॉक्ड अप हो चुके हैं, तो टाइम मिलता गया अपने साथ बैठने का, एंड रियलाइजेशन दैट दिस इज़ लाइफ. They say ना कि showbiz is uncertain. Showbiz is the most uncertain profession. यहाँ पे आपको आज आपने कोई प्रोजेक्ट किया, वो रिलीज़ हुआ, उसके बाद अगेन इट्स अ रीस्टार्ट, फिर से जर्नी स्टार्ट करो. लेकिन आई वुड से कि लाइफ इटसेल्फ इज़ अनसर्टन. वी आर कॉलिंग वन प्रोफेशन अनसर्टन, बट पूरी ज़िंदगी अनसर्टन है. हम क्या प्लान करते हैं और क्या कुछ हो जाता है. तो अनसर्टेनिटी ही इज़ द ओनली ट्रूथ, एंड अनसर्टेनिटी इज़ द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ. तो जब आपको अवेयरनेस हो जाती है तो फिर धीरे धीरे हेल्प तो होती है ना. कोई भी चीज़ हो रही है आपके साथ, तो यू रियलाइज़, करियर हो चाहे कुछ भी हो, कि ये होगा. लाइक यू आर एब्सोल्युटली हेल्दी, सडनली आपको आप बाहर निकले और आपको कोई वायरस पकड़ गया, आप बीमार हो गए, तो अनसर्टेनिटी ना. नेक्स्ट डे कोई आपने कुछ प्लान किया है एंड यू आर नॉट एबल टू अटेंड दैट, अनसर्टेनिटी. सो यू विल नॉट गेट डिस्टर्ब्ड इफ यू आर अवेयर दैट दिस इज हाउ लाइफ इज. Otherwise, it's very easy to get disturbed by small happenings of life. Definitely. We have so many things to get distracted. Yeah, Abhi. distracted and disturbed. Right. Which is a bigger thing. Distraction तो चलो आपने distract हुए, आपको awareness है, focus कर लिया, वापस आ गए. Disturbance is like when mind goes in a loop and it's difficult to then come out of it. So if you are aware, तो आपका वो disturbance से वापस आने का जो time है, it gets slowly shortened. So from several days of overthinking, then it comes to several hours of overthinking, then it shortens to several minutes. And then you're like, हाँ ठीक है, let it be, let it go. Right. Now coming back to बालिका वधू, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे, so you mentioned like some of your fans messaged you saying कि हम आपको किसी और किरदार में नहीं देख सकते. How did it feel for you? So I was amused, definitely. I was flattered also because ये messages अभी recent times में ही काफ़ी आ रहे हैं. बालिका वधू का रीरन चल रहा है
एंड दूसरी तरफ संकल्प ऑन है. तो आई वॉज डेफिनेटली अम्यूज्ड, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फेल्ट के ठीक है प्यार दो, लेकिन दूसरे कैरेक्टर्स को भी प्यार दो, बिकॉज रूप सिर्फ सांची ही नहीं प्ले कर रही है, रूप माधुरी भी प्ले कर रही है, आगे और भी कैरेक्टर्स आने वाले हैं, तो सबको प्यार दो. बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स द ऑडियंस जिनको जो कनेक्ट करता है वो अपना प्यार इस तरह से जता रहे हैं. बिल्कुल. सो आई वुड टेक इट एज ग्रैटिट्यूड. नाइस. एंड जो संकल्प है अभी, उसके बाद ऑडियंस ने आपको क्या रिव्यूज दिए? मुझे अभी भी उसके हर दिन, इट्स बीन क्लोज टू 1 month. 10th को रिलीज हुआ था, 10th मार्च. एवरी सिंगल डे आई गेट मिनिमम 1 व्हाट्सएप मैसेज मिनिमम, और अ वीडियो जो कि ये वाला सीन हमें बहुत अच्छा लगा, एंड सुपर्ब. एंड ऑफ कोर्स यू नो हाउ इट इज़, लाइक लोगों को अच्छा लगता है तो यू गेट कॉम्प्लीमेंट्स. तो हर दिन मुझे आ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्स एंड गेटिंग गुड रिव्यूज़, फ्लैटरिंग रिव्यूज़, एंड इट्स अ लॉन्ग वे बिकॉज शो तो how different it is from your TV commercials, then you have done TV serials and now the web series. मीडियम्स अलग हैं. टीवी कमर्शियल ब्रेक्स में आते हैं, एंड मेरे ज़्यादातर जो कमर्शियल्स हैं वो आईपीएल के ब्रेक्स में आए हैं, तो दे हैव गॉट रियली Right. गुड विजिबिलिटी. इमीडिएटली उसका आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है, लोग देखते हैं इमीडिएटली, आपको कॉम्प्लीमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं. टीवी शोज़ में भी वही है कि आज का एपिसोड देखा अभी आपको मिलेगा, एंड जब टीवी शो ओवर हो जाता है, अनलेस इट्स गोइंग फॉर अ रीरन, देन पीपल मूव ऑन टू अनदर शोज़. Okay. द गुड थिंग इज़ अबाउट OTT इज़ दैट इट स्टेज, इट इज़ देयर. ऐसा नहीं है कि आपने आज का एपिसोड मिस कर दिया रात का, तो अगले दिन आपको आप भूल जाओगे कि कल क्या हुआ था, पता ही नहीं है, सो यू कांट रिलेट. यू कैन वॉच इट एट योर ओन कन्वीनियंस एनीवेयर. लाइक पीपल हैव सेंट मी वीडियोज ऑफ पीपल वॉचिंग इट ऑन देयर फोन्स. Okay. संकल्प इन लोकल ट्रेन. Actually. एंड मैं देख पा रही थी कि यू नो इट्स मी एंड नाना सर्स सीन गोइंग ऑन, एंड इट वाज वेरी नाइस. इट वाज अ वेरी नाइस फीलिंग कि लोग कहीं भी देख सकते हैं जब उनका मन करे. बालिका वधू के साथ या कोई भी टीवी शो जो मैंने किए, उनके साथ ये ज़रूर होता था कि कई बार लोग मुझे बोलते थे, अरे 8 बजे हम ऑफिस से घर नहीं पहुंचे होते हैं, या फिर 8 बजे इस चीज़ का टाइम होता है, 11 बजे रिपीट आता था, आई थिंक उसका 11 या 11:30, एंड उस टाइम पर हम सो जाते हैं, समथिंग लाइक दैट. तो यहाँ पे अब वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब आपको टाइम है आप तब देख सकते हैं, Right. जहाँ टाइम है देख सकते हैं, कहीं पर भी पॉज करके, यू नो, एज पर योर कन्वीनियंस. But as an actor, टीवी सीरियल, डेली सोप्स, और अगर वेब सीरीज की बात करें, वेब सीरीज शूट होता है, पूरा होता है, उसका रिव्यू आपको तब मिलता है जब ऑडियंस उसको देखती है, फिर आपको देती है. बट डेली सोप्स में डोंट यू थिंक कि शूट तो मतलब एक लंबे ड्यूरेशन के लिए रहती है, तो कभी ऐसा होता है कि हाँ कोई किसी ने फीडबैक दिया तो वी कैन इम्प्रूव बेटर? यस, दैट इज द प्लस पॉइंट. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. आई रिमेंबर देयर वाज अ सीन इन बालिका वधू जिसपे जब सेट पे किया था, इट वाज आई थिंक 4 पेजेस का मेरा ही मोनोलॉग था थ्रू आउट. मैं ही उसमें लिटरली ड्रंक होकर के शादी के सीक्वेंस में जाती हूँ. शादी का नहीं, आई थिंक रिसेप्शन सीक्वेंस कुछ था, और फ्रॉम सुरेखा सीकरी टू एवरीवन वाज ऑन द सेट्स. सारे लोग, सिद्धार्थ, सब लोग थे सेट पे, पूरे कैरेक्टर्स. एंड मैं ड्रंक होके जाती हूँ और लिटरली वहाँ पे तमाशे वाला सीन है, बोल रही हूँ, सबकी इंसल्ट कर रही हूँ, एंड लिटरली 300-400 पीपल आर, हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर ऑन सेट. एंड जब ये सीन की हुआ तो आई वॉज तो ब्लैंक, बिकॉज नॉन स्टॉप मैं ही बोल रही हूँ, किसी का एक डायलॉग नहीं है बीच में, सबके पास जा के बोल रही हूँ. ख़त्म हुआ सीन एंड द एंटायर सेट क्लैप्ड. तो आई वॉज एब्सोल्युटली ब्लैंक, एंड माई डायरेक्टर डिड नॉट से एनीथिंग. ओके. हाँ, योर डायरेक्टर इज़ द वन जिनसे आप वैलिडेशन चाह रहे होते हो अंदर ही अंदर. बट ऑफ कोर्स क्योंकि आप सेट का माहौल होता है, आप फिर अपने क्लोजअप्स में बिजी हो जाते हो, टू मैनी थिंग्स हैपन, एंड देन फिर टेलीकास्ट होता है. उसके बाद TRP आती है, जो कि उस टाइम पे उसकी TRP, तो इट वाज अ नंबर 1 शो, एंड दैट डे उसकी TRP भी हाई आई. तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि, और बहुत तारीफ़ें, उसके आर्टिकल्स भी आए,
लोगों ने मुझे मैसेज किए कि तुम्हारा डायलॉग वो हिट हो गया है बुढ़ी वाला, एंड फ्रॉम एवरीवेयर आई वाज गेटिंग एक्colades एंड अप्रिसिएशन. एंड व्हेन आई वेंट टू द सेट आई थॉट कि आज तो सर मुझे बोलेंगे कि रूप तुमने बहुत अच्छा किया, सब लोग तारीफ कर रहे हैं. एंड यू नो व्हाट ही डिड, ही कॉल्ड मी एंड ही सेड मेरे पास भी आ रहे हैं कॉल्स, वेरी कामली सेड मेरे पास भी आ रहे हैं मैसेजेस. मैंने उनको बोला कि अगर तुम्हें ये सीन अच्छा लगा है तो तुम्हें पता नहीं है कि वो अभी और क्या क्या कर सकती है और कितना अच्छा कर सकती है, तो तुम ये मत सोचो कि तुमने बहुत अच्छा कुछ कर दिया है. ठीक है, ठीक किया है. Wow. सो यू नो इट वॉज अ वे टू कीप मी ग्राउंडेड कि एक सीन से आप हवा में इतना मत उड़ो, और भी काम आगे करने हैं, और भी इसमें बड़े बड़े सीन्स आएंगे, एंड देयर इज़ ऑलवेज रूम टू एक्सप्लोर एंड डू बेटर. सो दैट बालिका बधू वॉज माई फर्स्ट स्कूल. ऐसे ही मैं नहीं कहती हूँ कि इट वॉज माई फर्स्ट स्कूल, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई लर्नड देयर. To remain grounded, to be aware of my breath, to be in myself. I was very young when I entered, so I was also extremely chirpy and very jumpy, and at times my character required me to be within myself. There were times when I couldn't relate with the character of Sachi कि इतनी बदतमीज़ कैसे कोई हो सकता है, ऐसे कोई बात कैसे कर सकता है. So I was judging my character, which was not right. सो बहुत कुछ मैंने सीखा. एंड जैसा कि आपने बोला कि आपको रिव्यूज़ मिलते हैं तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं, तो सर अगर आपके डायरेक्टर ही आपको कॉन्स्टेंटली ये बता रहे हैं कि अभी और करना बाकी है, तो आपके पास 3 साल तक आपके पास सीखने का स्कोप ही स्कोप है. बिल्कुल. एंड अभी आपने संकल्प में नाना पाटेकर जी के साथ काम किया, वहाँ से क्या सीखने मिला? कि कम रिएक्शंस में ज़्यादा कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, साइलेंस का इम्पोर्टेंस, हाउ समथिंग कैन बी मोर इंटेंस व्हेन यू आर जस्ट फीलिंग इट डीप इनसाइड. वर्ड्स से ज़्यादा, वर्ड्स तो बाहर का एक डिस्प्ले हो गया, अंदर आप क्या महसूस कर रहे हैं, वो हाउ यू इंटरनलाइज, वो मैंने सीखा. From That- नाना पाटेकर sir. Nana sir, of course. And just yesterday, I was having a conversation with Neeraj Kabi. We were having this success celebration for Sankalp, and Neeraj Kabi sir, वो acting workshops भी करते हैं, तो he was also talking about mind of the character, कि ये कैरेक्टर सोचता कैसे है. तो सब कुछ तो इंटरनल है ना, फिर लाइंस जो हैं वो सिर्फ एक प्रोजेक्शन है उसके बाद. तो ये चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज हम टीवी में आपके पास लाइंस आती जाती हैं, आती रहती हैं. कैरेक्टर के अंदर घुसने का टाइम उतना नहीं मिलता आपको. इट्स अ क्विक मीडियम ना, आपने हर दिन का टेलीकास्ट निकालना है, तो OTT में आपको ये स्कोप तो डेफिनेटली मिलता है कि यू कैन थिंक अबाउट योर कैरेक्टर. एंड ऑफ कोर्स नाना सर को हम कब से, बचपन से, लाइक मैं पैदा नहीं हुई थी तब से ही इज़ एक्टिंग. तो ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज हु आर लिटरली इंस्टीट्यूशंस, जिनके इफ़ यू आर शेयरिंग अ टेबल विद हिम, इफ़ यू आर शेयरिंग द स्क्रीन स्पेस विद हिम, एवरी मोमेंट Is a learning. इज़ अ लर्निंग. उनके साइलेंसेस में, उनके पॉजेज में, हर चीज़ से आप सीख सकते हैं. एंड आई एम श्योर जैसे आपके फैन बोल रहे कि बालिका वधू के अलावा कुछ और नहीं दिख सकते, बट देयर मस्ट बी लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट यू आर एक्सप्लोरिंग इन योर लाइफ जर्नी. तो व्हाट आर द इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट यू लाइक? Like I said, career is one part of your life, and actual life is made up of lots of things. There is a lot to you as a person, and last couple of years have been a journey of introspection, reflection also for me. So coming from hills, I come from a small hill station. उत्तराखंड. Yeah, Almora in Almora, Uttarakhand. अच्छा. हाँ, Uttarakhand is the state. Almora is the hill station. तो being a hill girl, मैंने कभी ट्रैकिंग इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था. ओके. हमें तो बिकॉज घर से स्कूल जाना ही एक पहाड़ चढ़ना उतरना, यू नो, इट फील्स लाइक कि ये तो हमने किया ही हुआ है. एंड आई वॉज नॉट वेरी रफ एंड टफ इन लाइफ. अच्छा. आई एम ऑल फॉर कंफर्ट कि
आराम. And I felt this is something which is stopping me somewhere. And I can explore this side of me. कहीं ना कहीं तो होगा क्योंकि आपके ब्लड में है. पहाड़ चढ़ना उतरना तो वो एक्सप्लोर किया मैंने. आई रियली इन्जॉयड इट एंड आई थिंक लास्ट 1.5 year तो मैंने बहुत एक्सप्लोरेशंस किए हैं. मल्टीपल ट्रैक्स इन एंड अराउंड बॉम्बे एंड आई इवन वेंट टू मेघालय रिसेंटली. तो वहाँ पे लाइव रूट्स डबल रूट्स ब्रिज है. तो दैट ट्रैक वाज आल्सो अमेजिंग. इट टेस्ट्स यू कि कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी रेजिलियंस है. एंड फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मेंटल स्ट्रेंथ आर समहाउ इंटरकनेक्टेड. राइट. फिजिकल स्ट्रेंथ गिव्स यू मेंटल स्ट्रेंथ. जब आपको अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है तो यू कैन गो फिजिकल. क्योंकि जब आपका माइंड अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. तो इफ़ यू डू फिजिकल वर्क तो वो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करेगा. एंड अगर आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग महसूस नहीं कर रहे हो, यू आर अनवेल और समथिंग, देन यू वर्क ऑन योर माइंड. देन यू Automatically, physically you will be. हाँ. तो these are interconnected things. Why I say this, ये मैंने अपने योगा प्रैक्टिसेस में लर्न तो किया ही है. इसका एक्चुअली मैंने इसे होते हुए एक्सपीरियंस किया है. When I used to go for my treks, when you climb up the hill, और टॉप से आप देखते हैं पूरा नेचर, ग्रीनरी ऑल अराउंड यू, बिग हिल्स, एंड यू फाइंड योरसेल्फ सो टाइनी. तो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती हैं, लेकिन वी अलाउ देम टू कंज्यूम आवरसेल्व्स. छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़ी लगने लगती है. तो जब आप नेचर के बीच में होते हो एंड यू सी के हम कितने छोटे हैं इस नेचर के सामने, वी आर सो स्मॉल, सो टाइनी इन द स्कीम ऑफ बिगर थिंग्स इन लाइफ. तो आपको ना वो प्रॉब्लम्स जो हैं विच आर अफेक्टिंग यू इन एनी वे, दे स्टार्ट बिकमिंग वेरी स्मॉल. सो हमने किया क्या? फिजिकल वर्क किया व्हेन वी ट्रैक, बट इट अल्टीमेटली वर्कड ऑन योर माइंड. Right. And once you achieve that, तो mental boost मिलता है to again survive for the. Yes. I used to think कि आई एम सो छुई मुई टाइप्स कि मुझसे तो हो नहीं पाएगा. आई डोंट ईट जंक फूड, बाहर का खाना नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस, ऐसे ही ट्रैवल करना है, सो मैं कैसे करूँगी. बट मैंने किया और बहुत ही एक्साइटेड होके किया. बार बार रिपीटेडली आई डिड इट. लिटरली हैड बिकम अ हैबिट कि संडे मॉर्निंग्स वर फॉर ट्रैक्स. Wow. ऑफ लेट अभी तो मॉनसून्स ख़त्म हो गए. बारिश में ट्रैक करना, इट यूज टू बी इट वॉज अ हिंड्रेंस इन माई माइंड के स्लिपरी होगा, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी हो गया. तो वो सारी चीज़ें माइंड से जाती हैं एंड इट स्ट्रेंथन्स यू. एंड what are we except for these kind of strengths, यही हमें बनाती हैं. Right. resilience, fortitude, this courage. तो ट्रैक्स ने मुझे, ट्रैक सारा मुझे लगता है मेरा हिस्सा ही है, मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा ही है. वन ऑफ the aspects of my life which I really enjoy, and singing is another. Oh, you sing? Yes, I think singing is my first love. जब मुझे पता भी नहीं था कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, उससे पहले से सिंगिंग मेरी लाइफ का एक inseparable पार्ट रहा है. राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, दो आई एम नाइदर ट्रेंड इन सिंगिंग. एक्टिंग तो चलो अभी वर्कशॉप्स करते करते, इतने सारे मीडियम्स में काम करते करते यू लर्न वाइल वर्किंग ऑल्सो. बट सिंगिंग हैज़ बीन, वो अंदर से आता है मुझे. तो आई फील वेरी मेडिटेटिव. एंड ऑल्दो मेडिटेशन बिकेम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, बट सिंगिंग वाला मेडिटेशन जो है वो मेरा बचपन से चल रहा है. सो व्हेन आई सिंग आई फील आई एम इन अनदर वर्ल्ड. Great. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है मेरी ज़िंदगी का, जो कि मुझे अलाइव रखता है.
Whenever I listen to music, I feel, I said na, dreams and memories is what life is made up of. Music भी उसमें added है. Music is also one of the very, very important aspects of my life. It is also मेरा And- essence. As an actor, now what are you expecting more from yourself? To do real characters. बहुत परफेक्ट कैरेक्टर्स जो होते हैं वो रियल नहीं होते, क्योंकि रियलिटी में हम परफेक्ट होते ही नहीं हैं. बहुत लेयर्ड होते हैं. एवरी ह्यूमन बीइंग इज मोस्टली लेयर्ड. सो दोज काइंड ऑफ इंटेंस कैरेक्टर्स आई एम लुकिंग टू पोर्ट्रे, जो कि चैलेंजिंग भी हों, बिकॉज OTT इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू गिव योर सेल्फ टाइम. तो वाई नॉट यूटिलाइज दैट. Of course. आपके पास टाइम है तो वो लेयर्स में जाने का अगर आपको मौका मिल रहा है तो व्हाई नॉट एक्सप्लोर दैट साइड. एंड व्हाइल एक्सप्लोरिंग द कैरेक्टर्स यू एंड अप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ आल्सो. You start seeing some similarities between yourself and the character that you are playing. It becomes an inwards journey as well. But also it makes you clear what you are actually not. Oh yeah, absolutely, absolutely. धीरे धीरे खुलती हैं ये परतें with time. Right. एंड फिर उसी प्रोसेस में यू स्टार्ट एन्जॉइंग इट. सबसे ज़्यादा मज़ा उसी में आता है, द प्रोसेस. कि ओ वाओ, आई रिसेंटली learnt certain things about myself, and I tried to incorporate the improvement or change, whatever you might want to call it, and it felt like a revelation. कि oh my god, all these years I was living my life without even knowing this. And it happened in a workshop, and it's still going on, but it has changed my entire perspective towards my own self also. No, it does help. The workshops, acting workshops specifically, Yeah. they do help you, like understanding your emotions. And actually, I personally feel like what kind of character you are not. हाँ, and especially if any part of the workshop touches that aspect of your life जो आपको करने की ज़रूरत है, Because I रेजोनेट होना चाहिए वो आपसे. सो अगर वो रेजोनेट हो गया जो वहाँ पे बताया जा रहा है, एंड व्हाट यू फील यू नीड, और व्हाट जो आपने सोचा ही नहीं था कि यू नीड, वो चीज़ें जब टच हो जाती हैं तो इट फील्स लाइक मैजिक. Right. Yes. So thank you so much, and thank you so much. I think we have touched on a lot of different aspect of your personality. या Roop. Yeah, because I think there is a lot to an actor also beyond just the acting part. And until recently, I used to just say that I'm an artist, not just an actor, because मैं painting भी करती हूँ, sketching भी करती हूँ. ज़्यादा दुख में होती हूँ तो पोइट्री भी निकल जाती है, योगा भी करती हूँ, तो सिंगिंग भी, ये सब मैंने बता ही दिया आपको. आई लव प्लेइंग बोर्ड गेम्स ऑल्सो. तो देर इज सो मेनी थिंग्स टू यू अपार्ट फ्रॉम जस्ट द एक्टर पार्ट, and touching upon that doesn't happen all the time. So I'm really glad that we could discuss, and Yeah, a lot of and sharing happened. All the very best, and like you explore more, so you never know कितने रूप और दिखेंगे. Absolutely. I'm living that life where I'm still exploring myself, learning in every step as I go ahead, and I'm sure there will be a lot more to explore in coming days. Sure. Thank you so much. Thank you.